مومن ابتدائی کلام میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک بار سورہ الحم اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم سید محبوب علی ابن قمر علی اور مرحومہ شاکرہ فاطمہ بنت قمر علی کی روح کو ارسال کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیع طبیب نفوسنا، مولا و مولا ثقلین، صاحب کعبۃ حسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فزت برب الکعبہ۔ آج مجموعی بہت سستی ہے، آپ اتنی سستی بہت آہستہ سے سلوات پڑھ رہے ہیں، وقت آدھا تھوڑا خیال لگا دیے، سلوات بلند آواز سے بہرحال مجلس ہے اور مجلس بھی اسی لیے عنوان سخن جو قرار دیا وہ حضرت امیر کائنات امیر المومنین کے لبہائے مبارک سے نکلے وہ الفاظ جو ایک مجاہد نے اپنے سر پر تلوار کھانے کے بعد ادا کیے، اور یہ اس وقت ادا کیے جب آپ کی پوری داڑھی خون میں رنگ ہو گئی تھی اور پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ گیا تھا۔ اس بات کو امام حسن سے بھی کہا تھا آپ نے، مولا علی نے، کہ دیکھو میرے لال حسن، پہلے نماز کے جو مسئلہ آیا تھا تو جب سنبھالا امام حسن نے تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میرے لال یہ بتاؤ میری داڑھی خون میں پوری رنگ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا پورا چہرہ جو ہے وہ رنگ گیا، بابا داڑھی کیا چیز ہے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی تو مولا نے تو اظہار نہیں کیا تھا کہ میں شہید ہو گیا ہوں، مولا تو اپنے کلمات دہراتے چلے جا رہے تھے بار بار، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ مولا علی نے نہیں کہا کہ میرے سر پر وہ لگ گئی آؤ یا تم مدد کو پہنچو، ایسا کچھ نہیں تھا چیزوں میں۔ یہ امیر کائنات صرف یہی کہتے رہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم بھی نہ چل رہا تھا، خود مسجد میں نہیں معلوم تھا نمازیوں کیا ہو رہا ہے، وہ تو جبرائیل آسمان سے علی الاعلان چیخا ہے، علی الاعلان اس نے کہا قدمت ارکان الہدی، اے لوگوں آج ہدایت کے مینارے توڑ دیے گئے، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ یہ آواز ایسی جبرائیل نے لی تھی کہ یہ آواز بالکل بلا واسطہ ظاہر ہو گئی تھی، اور ہر جگہ صدائے کن میں جسے کہا جائے ہر جگہ یہی بلند ہو گیا تھا کہ امیر المومنین جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ مومنین نے جب دیکھا تو اس وقت تو امیر المومنین جو ہے مسلح کے ایک طرف بیٹھے ہوئے اپنے سر میں خون میں لت پت تھے، پورے محراب امیر المومنین کے خون سے عزیزو جو ہے وہ لت پت ہو گئی، اتنا خون نکلا تھا مولا کائنات کے جسم مبارک سے۔ تو اس وقت جبرائیل، کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل ہماری فہرستوں میں ہے، جس فہرست میں ہم ہیں اسی فہرست میں جبرائیل ہے۔ جبرائیل بھی امیر المومنین کو ایسے ہی چاہتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک رشتہ مولا علی سے جو ہے وہ استاد اور شاگرد والا بھی رشتہ ہے۔ لہٰذا جبرائیل کو جب اللہ نے پہلے پیدا کیا پروردگار نے
मलक को खल्क फरमाया तो जिब्राइल से पूछा था बताओ मैं कौन हूँ, अल्लाह ने पूछा था। तो जिब्राइल की ज़बान पे कुछ नहीं आ पा रहा था, कुछ भी नहीं, खामोश बिल्कुल खड़ा हुआ था जिब्राइल। तो पीछे से नूरे मौलाए कायनात ने आवाज़ दी, कहा तू इनसे कह दे कि तू हमारा रब है और हम जो है तू मेरा खालिक और हम जो है तेरी मखलूक है। तो कहा फिर और ये बता तू कौन है? तो कहा कह दे कि मेरा नाम जिब्राइल है। लिहाजा दो पर वाला है, जिब्राइल दो पर के साथ मौलाए कायनात ने दोनों को सिखाया। तो कहने का मतलब ये कि मौलाए कायनात ने सबसे बड़ा एक सलवात पढ़ दिया मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो मोमिन जुमला तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ सुनना चाहेंगे तो समाज पे बेदार कर लीजिएगा, ज़्यादा वक्त भी हम नहीं लेंगे, जो हमारा वक्त है उसी वक्त पूरा करेंगे। तो अजीज़ों फुज़्तु बिरब्बिल काबा, ये कायनात में कोई इंसान कह के गया है आज तक? अजीज़ों बताइए कोई गया है कह के इस दुनिया में? किसी के मजाल भी नहीं कोई कह के चला जाए, और अगर कह के चला भी जाए तो उसके घर में उसके महल्ले एरिया में लोग खड़े हो जाएंगे, अरे ये कहाँ से कामयाब हो गया, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, कौन कामयाब हो सकता है? हद ये हो गई अंबिया ना कह सके अल्लाह अकबर। पैगंबरे खुदा को तो हटा दीजिए, वो तो उस्ताद हैं मौलाए कायनात के, समझ लीजिए वह खत्मुल मुरसलीन है, लेकिन अंबिया में पैगंबर को छोड़ के किसी ने ये ना कह सका कोई नबी कि मैं रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। दुनिया में ऐलान कोई नहीं कर सका, जो भी इस दुनिया में आया है ये सिर्फ अमीरुल मोमिनीन है जो ऐलान करके गए अपनी कामयाबी का और अपनी कामरानी का ऐलान करके चले गए। देखिए कामयाबी के रुख बहुत ज़्यादा होते हैं, कई रुख कामयाबी के होते हैं। मौलाए कायनात की ज़िंदगी पूरी कामयाबियों से भरी हुई है, कौन सा रुख आपका कामयाबी से नहीं भरी हुए? लेकिन आज मौलाए कायनात ने ये जुमला कह दिया कि मैं रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। मौलाए कायनात दुनिया को बताना चाहते हैं मैं खालिके कुल की वागराम में ये कह रहा हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार जैसी जिंदगी कल तूने मुझे काबे से दी थी वैसी जिंदगी आज मैं मस्जिद से वापस कर रहा हूँ। और ये जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी फजीलतों से आरास्ता है। और दूसरा रुख क्या था? एक आध रुख नहीं, कई रुख सुनिए। एक रुख ये कि जैसी जिंदगी अल्लाह तूने दी थी वैसी मैंने वापस कर दी, कोई गुनाह नहीं हुआ। दूसरा रुख ये था कि अमीर शाम ने हर जगह ऐलान करवाया था, पूरे पूरे जहाँ तक उसकी ताकत थी कि अली का नमाज से कोई वास्ता नहीं है, अली नमाज नहीं पढ़ते हैं, अली कभी मस्जिद भी नहीं जाते हैं, अली क्या जाने नमाज क्या चीज़ होती है। ये बात 70,000 मेंबरों से कहलवाई थी। एक आध मेंबर की बात हो तो अजीज़ों बयान की जाए, 70,000 मेंबर कितने हुए गौर करने वाली बात है। हमारे हिंदुस्तान में भी इतने बड़े मुल्क में भी 70,000 मेंबर नहीं होंगे अजीज़ों, लिहाजा इतने मेंबर 70,000 मेंबरों से ये बात कहलवाई कि अली नमाज नहीं पढ़ते हैं और अली का नमाज से कोई वास्ता नहीं है। शाम के लोग तो अली को नाउज़ुबिल्लाह एक आम इंसान समझते थे, बल्कि उनको तो एक जालिम जाबिर ठहराया था। सबसे बड़ी बात ये कही थी उनका नमाज से कोई वास्ता नहीं है, यानी कि शाम में ऐलान हो रहा है अली का नमाज से कोई वास्ता नहीं है। मौलाए कायनात के सर पर ज़रबत लग रही है। मौलाए कायनात ने फुज़्तु बिरब्बिल काबा कह के बता दिया, ऐ अमीर शाम तेरी सल्तनत चाहे जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, आज अमीरुल मोमिनीन ने कामयाबी का ऐलान कर दिया है। यानी कि मौलाए कायनात ने महराब मस्जिद कूफा से ये ऐलान नहीं किया है, बल्कि शाम के तख्त पर बैठने वाले अमीर शाम माविया को नीचे गिरा दिया, ये कहते हुए कि दुनिया को जिसको तूने बताया था अली नमाज नहीं पढ़ते थे, अब ये पैगाम निकल के जाएगा
अली कहाँ मारे गए, कहाँ शहीद किए गए, तो जमाने का बच्चा बच्चा कहेगा अली महराम में हालत नमाज में शहीद किए गए। अमीर अल मोमिनीन ने ऐलान कर दिया, या लफ्जों को बदल कर कह दूं, अली ने माविया के तख्त को अपने तलवार से नहीं गिराया बल्कि अपने अल्फाज से गिरा के रख दिया। सारा प्रोपेगेंडा एक तरफ रह गया, अली का जुमला एक तरफ रह गया। अजीजों, एक सलावत मोहम्मद और आले मोहम्मद। अजीजों, एक साजिश रची गई थी कि हाँ, माविया ने कहा था कि अली नमाज नहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा ये रचा गया कि खारजियों ने ये खाने काबा के पास ऐलान किया, कसम खाई खड़े होकर कि हमें मारना है, 3 लोगों को मारना है। किस किस को मारेंगे? अमरियाज को मारा जाएगा, माविया को मारा जाएगा, और किसको मारे हैं? मौला अली को मारा जाएगा। 3 लोग वहां से मारने के लिए निकले, लेकिन 3 लोग जो मारने, ये रिवायत बयान की गई है। अभी इस रिवायत का महासन देखिएगा अजीजों। कहते हैं कि 3 लोग मारने के लिए निकले तो इब्ने मुलजिम को मुअय्यन किया गया कि तुम अली को मार देना जाके कूफे में, और 2 लोग और थे, उनको मुअय्यन किया गया कि तुम फला जगह जाके माविया को मार देना, तुम अमराज को मार देना। मिस्र में जाके, शायद गालिबन वो उस वक्त मिस्र के इलाकों में था। लेकिन जो कुछ भी हो, बहरहाल नतीजा क्या निकला, बाद में ये निकला, रिवायत आई की जा रही है कि उस दिन जो है वो अमरियाज ने अपनी कनीज को भेज दिया नमाज पढ़ाने, लिबास उठा के। अल्लाह, वो कितने आने के प्रोपेगेंडा तारीख का देखिए कि उस दिन अमरियाज को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी कनीज को अपना लिबास पहन के कहा तुम जाके नमाज पढ़ाई जाओ, लिहाजा वो उनकी जान बच गई। फिर फरमाया कि माविया जब जा रहे थे तो उनके बाद वो महराब तक नहीं पहुंच पाए थे, उससे पहले एक सहाबी के ऊपर हमला हो गया और कत्ल का फाश इरादा हो गया, और इसके बाद जो है वो बच के अपने घर चले गए। तो अब बताइए माविया ने कितने दिन नमाज पढ़ाई है महराब में? सोचने वाली बात है अजीजों। गौर करके सुनिए, क्या ये कभी नमाज पढ़ाते थे? अगर इन्होंने पढ़ाई भी है तो एक नमाज इनकी मशहूर ज़माना है कि इन्होंने बजाय जुमे के बुद्ध को पढ़ा दिया, और लोगों ने जब इनसे पूछा कि आपने बुद्ध को क्यों पढ़ा दिया, तो इन्होंने कहा सारे दिन एक जैसे हैं, एक बराबर है। तो लोगों ने कहा ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, सारे दिन कैसे? तो जो कभी महराम में ना उतरे उनके बारे में कहा गया कि वो बच गए थे इस तरीके से। दूसरा कहा गया कि नहीं, वो कनीज को भेज दिया था उन्होंने। मौलाए कायनात को फिर इब्ने मुलजिम ने क्यों शहीद कर दिया? सोचने वाली बात है। ये तारीख के प्रोपेगेंडे रचे गए ताकि लोगों के दिलों में जो है वो अली और माविया अमरियाज की मोहब्बत यकजा कर देनी चाहिए, मतलब मिला देनी चाहिए। ये सल्तनत उस्मानिया जो गुजरी ना थी, 700 साल में बहुत कुछ प्रोपेगेंडे किए हैं इन्होंने हमारे शियों के उलमाओं का नाम रखा था जलाली लुटेरे, और इनको ईरान के जो अपने शिया थे उनको जलाली लुटेरे, उलमा को भी उनको जलाली लुटेरे के नाम से याद किया करते थे ये लोग। तो ये अजीजों गौर करने वाली बात और फिक्र करने वाली बात है कि जब उनसे वास्ता किया, हकीकत हाल ये है कि जब उसकी रिवायत को हकीकत तक पहुंचाया गया तो मालूम हुआ कि 1000 रुपए में इसने तलवार को खरीदा था। तलवार शाम की खरीदी हुई थी, उसके ऊपर 1000 रुपए में उसके ऊपर जहर करवाया गया, वो जहर भी शाम में बुझाया गया था। यानी तलवार भी शाम से आई, जहर भी शाम से ही लग के आया। जमाना कह रहा है प्रोपेगेंडा तारीख को उलझा के रख देगा। इब्ने मुलजिम तो खाली एक हाथ है, तलवार तो माविया के दरबार से निकली है, जहर तो अमीर शाम के यहाँ से निकल कर आया है। दुनिया, ये हमारे यहाँ मुनाफिकत का तरीका रहा। रसूल शहीद कर दिए गए, वफात लिखी गई, लिहाजा अब क्या करे, कातिल हाथ में नहीं आया। इमाम हसन जो है कत्ल कर दिए गए, जौजा का नाम आया, मेन कातिल हाथ में नहीं आया। अली के सर पर तलवार लग गई, लिहाजा इब्ने मुलजिम का नाम आया, मेन कातिल हाथ नहीं आया। यानी कि ये हमारे यहाँ तकरीबन 30 साल से ये चलता रहा कि रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया गया, नाम वफात लिखी गई, उसके बाद जो है अली इमाम हसन को जहर दिया गया, नाम उनकी बेटी का आया, लेकिन जहर आया कहाँ से? शाम से। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन को जो है शहीद कर दिया गया, इब्ने मुलजिम का नाम आया, लेकिन यानी कि मेन कातिल नहीं समझ में आया। ये करबला में हुसैन इब्ने अली ने खड़े होकर कहा
आ जाओ, मुनाफिकत का चेहरा एक तरफ हो जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन ने ये बता दिया करबला में, अब चाहे हाथ किसी का हो, कातिल असल पकड़ा जाएगा। यही वजह है कि आज यजीदियत का जब नाम आता है, जब हम कहते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यानी बताया जा रहा है असल कातिल भी पकड़ा गया है, असल मकतूल भी मौजूद है। आपने सुना अजीजों, लानत किसके ऊपर भेजते हैं? कत्ल हुसैन की यजीद के ऊपर गिरती है। ये वो पेश था जो हुसैन इब्न अली ने सुलझा दिया, यानी हुसैन इब्न अली के बेटे ने, जनाब ज़ैनब ने उसके दरबार में जाकर असली कातिल को पकड़ा है। ये वो थे अजीज़ और रहीम जो हमेशा काम करवा दिया करते थे, इनके नाम नहीं आया करते थे, काम करने वाले सजा भुगता करते थे। लिहाजा मौलाए कायनात ने ये ऐलान फरमाया कि देखो हम कामयाब हो गए। मौला अली ने कामयाबी के बहुत सारे राज बयान फरमाए, और वो राज ये है कि इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी हो कि जो इताअत परवरदिगार आलम में गुजरे और तक़वा इलाही में गुजरे। तो मौलाए कायनात ने कहा है मैं उसको महशर में कामयाब करा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके दिल में तक़वा इलाही हो और वो अल्लाह की इताअत करता हो। ये वादा खुद मौलाए कायनात करके गए हैं। तो अजीजों, ये दूसरे एक मसला ये है कि कुतामा, कौन कुतामा? बाज़ औक़ात ये हाँ, ये रिवायत थोड़ा दुरुस्त है कि ये कत्ल के लिए गया था, इसको जो है मौका नहीं मिल पा रहा था, बार बार भागा भागा फिर रहा था। एक बार इसने सोचा कि मैं जो हूँ आज मैं शाम में अमीर अल मोमिनीन को सुना है वो रात में गरीबों को माल तकसीम करने जाते हैं, लिहाजा मैं आज शाम में उसको जो हूँ मार दूंगा मौलाए कायनात को। ये बहुत पीछा करता रहा, लेकिन मौलाए कायनात आए और देख के चले गए। कई बार जो है ये देखता रहा और मौला कायनात निकल गए। इसने मौका पाते पाते फिर एक वक्त ये सहम और डर सा गया था, इसलिए क्योंकि जब ये कहा था मीसा में तम्मार ने ये कौन जा रहा है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था यही है कि जो मेरी दाढ़ी को खून में रख देगा ये अपने मुलजिम है। तो जनाब मीसा में तम्मार ने कहा मौला पर देर किस बात की, तलवार निकालते गर्दन उड़ा देते हैं। तो मौलाए कायनात ने कहा मीसा जुर्म से पहले सज़ा कैसे दे दोगे? जुमला था अज़ीज़ों, जुर्म से पहले जज़ा कैसे दे दोगे? तो कहा क्या मतलब मौला? कहा जुर्म किया नहीं है, सज़ा कैसे दोगे? अभी तो वो आज़ाद है, लिहाजा ये जुर्म करेगा बाद में सज़ा दी जाएगी। और यहाँ तक के मौलाए कायनात तो कत्ल करने के लिए बार बार ये सोच रहा था, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था कायनात का मलऊन तरीन शख्स होगा कि जो मेरे भाई अली की दाढ़ी को खून में रंगेगा। तो ये जुमला जब याद करता था तो ये डर जाता था। कभी कभी जंग सिफ़ीन में इसके ऊपर तलवार बिल्कुल गर्दन पर आ चुकी थी, ये मरने वाला था। मौलाए कायनात ने वार करके इसके कातिल को फेंक दिया और इसकी जान को बचाया। एक दिन ये प्यास से मर रहा था इब्ने मुलजिम रास्ते में, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम को अपना पानी दिया और ये थोड़ा ठीक हुआ। लिहाजा ये बार बार इस बात में सोच रहा था और फिक्र कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसे घर में जा चला गया जिसका नाम कुतामा था। कुतामा एक खूबसूरत हसीन लड़की का नाम है कि एक शैतान समझिए किस्म का, जिसने ये कहा, ये उसके हुस्न के ऊपर फ़िरफ़्ता हुआ और इसने कहा कि ऐसी बात है कि मैं जो हूँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा महर हमारा सुनोगे तो तुम भाग जाओगे। कहा क्या है? कहा महर में हमें सरे अली चाहिए, क्योंकि अली ने हमारे बाप को भी मार दिया है, हमारे भाई को भी मार दिया है जंग में, लिहाजा हमें सर चाहिए महर में। तो इसने कहा इस मकसद के लिए तो हम कूफा ही आए हुए हैं, लिहाजा इसमें कौन सी हुआ है। लिहाजा हर एक दिन पहले बहुत दिन तक कई बार देखा दुखी हुई है अजीजों। उसके बाद इसने अपना वरदान नाम का, अपना एक गुलाम था इसका, वरदान नाम का गुलाम, और ये कहा था कि अगर इब्ने मुलजिम पर वार हो तो तुम वरदान इसका दिफा करना जाके। और ये पहुंचा है तो वरदान गुलाम भी गया और खुद इब्ने मुलजिम भी गया, ये औंधा लेट गया जाके, यहाँ तक आपने अजीजों सुना है। लिहाजा ये कातिल कत्ल में ये भी है। आप जानते हैं कि ये कि अजाब ऐसा भी आया औरत के ऊपर कि छिपकली की शक्ल में तब्दील हो गई औरत दुनिया में। कहाँ कहाँ से अली के फजाइल को छुपाया गया,
किन किन अजाब को छुपाया गया। जो अली के मुनकिर थे, जो आले मोहम्मद के मुनकिर थे, लिहाजा क्या हुआ, इधर अली की शहादत हुई, इधर छपकली की शक्ल इख्तियार हो गई और इतना बड़ा इंसान छपकली में तब्दील हो गया। कितने अजीजों, ऐसे बड़ा अजाब क्या और होगा। तो मौलाए कायनात के अहले बैत के जो भी दुश्मनान थे, पहली बात तो नस्ल के एतबार से दुरुस्त नहीं थे, उनका नस्ली ताल्लुक अच्छा नहीं था अजीजों। उन सब की जो है विरादत में खवासत थी और किसी का भी जो है अहले बैत के दुश्मन जो कट्टर जो कातिलीन समझ लीजिए, उनका न कोई मजहब था, उनका न कोई मुअय्यन बाप था अजीजों, उनके बाप भी कोई मुअय्यन नहीं थे। लिहाजा ये नासबी जो है अहले बैत के दुश्मनों को नासबी कहा जाता है। और नासबी आज भी ख़त्म नहीं हुए हैं, आज भी नासबी पूरी सऊदी अरब भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज भी ख़त्म हो गए हैं। ये नासबी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़ों को गिरा दें, बीवी फातिमा ज़हरा के रोज़ों को गिरा देते हैं, अहले बैत के दुश्मन को नासबी कहा करते हैं। नासबी क्यों? क्योंकि वो नसब के एतबार से दुरुस्त नहीं होता है। लिहाजा वो कौन उसकी विलादत में तहारत नहीं पाई जाती है, जिसके लिए खुद मौलाए कायनात के बारे में और रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली हुब्बुका मन ताहिरल विलादा, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी। सासा इब्न सौहान आए हैं और आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ऐ मौला हमें कोई जो है इल्म दीजिए। तो आपने बयान फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो आपने बयान फरमाया कि है मौला, बहुत अरसे से दराज से मैं गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। अब आप जब दुनिया से जा रहे हैं तो मुझे चंद बातों का जवाब दे दीजिए। 3-4 बातें हैं, यूँ तो बहुत बातें करी थी, 3-4 मुलाजा फरमा लीजिए। तो आपने बयान फरमाया था, ऐ मेरे मौला, आदम में और आप में क्या फ़र्क है, आदम में और आप में क्या फ़र्क है। अब बोल जाइएगा, 1 मिनट की मजलिस और है चीज़ों। लिहाजा थोड़ा तारीख़ आपने सुनी, अब थोड़ा बोलिएगा अपने मौला के फ़ज़ाइल के ऊपर। बहुत बड़ी बात सवाल सासा इब्न सौहान कर गए 20 रमज़ान में, और 20 रमज़ान को आपने कहा मौला ये बताइए कि आदम में आप में क्या फ़र्क है, आदम अफजल है आप अफजल हैं। तो आपने बयान फरमाया, सुनो, वो आदम है जिनसे लिबास जन्नत उतरवा लिया गया, ये मैं हूँ, मेरे बच्चों के लिए लिबास जन्नत घर तक आ गया है। अरे अजीजों, मैंने जुमला दिया है, सुना होगा। अब जो नया जुमला सुनिए, बिल्कुल आपकी समातों की नई फिक्र। आपने बयान फरमाया, सासा इब्न सौहान तहरीर करो इस बात को, अली वो है और आदम वो है। आदम को अल्लाह ने एक फल खाने को मना किया था, जो फल गेहूं का था। कहा अल्लाह ने आदम को गेहूं खाने से मना किया, मना करने के बाद उन्होंने खाया। कहा सासा, मुझे कभी अल्लाह ने मना नहीं किया, अली ने कभी गेहूं खाया नहीं है सिवाय जौ के। एक सलावत पढ़ दिया मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आपने एक सासा इब्न सौहान ने पूछा, फिर पूछा उसके बाद कि नूह में आप में क्या फ़र्क है, वो तो आदम सानी है। कहा नूह में और हम में ये फ़र्क है कि नूह ने तबलीग की और उसके बाद क्या हुआ कि नूह अपनी जान को बचा गए और कश्ती वालों को लेकर चले गए, अपनी जान को बचा गए और चाहने वालों को बचा गए, लेकिन उम्मत के ऊपर अजाब नाजिल हो गया। यानी वो नूह है कि जो खुद बच के अपनी कश्ती बचा के लेके चले जाए। कहा हम वो है सासा इब्न सौहान, खुद तो खून के दरिया में नहा सकते हैं लेकिन उम्मत मुस्लिमा को नई हयात देकर जाएंगे और एक नई रोशनी देकर जाएंगे हम उम्मत मुस्लिमा। क्यों? क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा है, ये हमारी उम्मत है। फिर बयान फरमाया, मौला ये बताइए कि आप में और मूसा में क्या फ़र्क है। तो आपने बयान फरमाया, शजरतुन निदा कौन है। तो शजरतुन निदा जब तलाश किया गया तो मालूम हुआ उसके मायना ये है कि शजरतुन निदा यानी वो शजर कि जिससे आवाज़ दी जा रही हो। शजरतुन निदा के बारे में कहा गया ये वो शजर है जिससे आवाज़ आती थी। इस शजर से परवरदिगार आलम कलाम करता था जनाब मूसा से। जनाब मूसा से जो कलाम करता था तो आप दूर पर जाते थे तो वहाँ एक शजर था, दरख्त था, वहाँ से आप कलाम करते थे, लिहाजा वो शजरतुन निदा कहलाया गया। आपने बयान फरमाया वो शजरतुन निदा कौन है।
وہ शजरतुन निदा कोई और नहीं है, वो अली इब्न अबी तालिब ही है कि जिसने कभी मूसा से बात करी है तो कभी ईसा से बात करी है। कहा हमारा नाम तो वो है कि ईसा ने हमारा नाम चरखे जब ले लिया था सूली पे चढ़कर, तो हमने उसको चरखे चारम की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। और याद रखो सासा इब्न सौहान, हुक्म सारे अल्लाह के होंगे, लेकिन जहाँ अल्लाह को हाथ की जरूरत हुई वहाँ मेरा हाथ गया, जहाँ अल्लाह को चेहरे की जरूरत हुई अल्लाह ने मेरे चेहरे को बढ़ा दिया। और उसके बाद आपने बयान फरमा दिया, लिख लो और बयान कर देना सासा इब्न सौहान, नबी ने बयान फरमाया है कि तुम आदम का इल्म, नूह का तकवा, ये सब का देखना चाहो तो अली के चेहरे को देख लेना। ये अजीज़ व हदीस मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए, इब्न मुलजिम मुरादी मलून ने हमला किया और आपको शहीद कर दिया। तो आपने 2 दिन बड़ा आलम कर्ब में गुजारे और आपने 19वीं का दिन और 20वीं का दिन आपने बड़ा परेशानी में गुजारा। जैसा कि आपने सुना, ऐसा कौन होगा दुनिया में कि जो अपने चाहने वाले, अपने कातिल को किसी की मजाल है। हमारा और आपका कातिल अगर होता तो हम मारते, लेकिन जब अली के सामने दूध का गिलास आता है तो मौला कायनात आवाज़ दे रहे हैं, ऐ हसन मेरे कातिल को भी कुछ खाने के लिए दिया है या नहीं दिया है, इसलिए कि वो तुम्हारी गिरफ्त में है हसन। उसके बाद का उसको बुला के लिया हो, सामने बुलाया, अली ने जो हाथ में दूध था उसमें सिर्फ आपने थोड़ा सा पिया और पीने के बाद दूध का पूरा लीवान, पूरा गिलास इब्न मुलजिम को दिया, कहा इसको पी लो। जब इब्न मुलजिम ने दूध का भरा गिलास पी लिया तो मौलाए कायनात ने कहा, इब्न मुलजिम क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? तो इब्न मुलजिम ने सर झुका के कहा, बेशक आप मेरे अच्छे इमाम थे। कहा तू प्यासा था, मैंने तेरी प्यास नहीं बुझाई थी। कहा बुझाई थी तो कहा फिर तूने मुझे क्यों कत्ल किया? इतना कहना था, जवाब कातिल क्या दे पाता? कहा ले जाओ इसको यहाँ से हसन। हसन गए, ले जाके बांध दिया इब्न मुलजिम को और सुतून से बांध के, कितना रहीम करीम है हमारा मौला अली। जब दुनिया से जाने लगे हर वसीयत करके गए, गरीबों की वसीयत, मिस्कीनों की वसीयत, परेशानों की वसीयत, अल्लाह के हुकूक की वसीयत, हमसाए की वसीयत, मोमिन की वसीयत। अरे जो हर वसीयत करके जा रहा था वो अपने कातिल की भी वसीयत करके चला गया और कहते हैं हसन ये मेरे कातिल ने मेरे एक ज़र्ब लगाई है, एक ही ज़र्ब मारना इसको। हाँ मेरे अजीजों, इमाम हसन ने एक ही ज़र्ब मारी, पहली ज़र्ब में इब्न मुलजिम मर गया। लेकिन मेरे अजीजों एक बात गौर करने की है, अरे मैं कैसे इस खानदान को बयान करूं? इन्होंने तो अपने कातिलों को भी एहसान किया है। इमाम सज्जाद अपने बाबा को रोते थे शब रोज, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे भैया, ऐ मेरे चचा बा। एक दिन ऐसा हुआ इमाम सज्जाद पानी पिला रहे थे, बच्चे पानी पी रहे थे, मश्क उड़ेल रहे थे। क्या देखा, एक सामने से हसीन इब्न नमीर आया, मौला सज्जाद ने उसे भी पानी पिला दिया। एक मर्दा पानी पीने के बाद इमाम सज्जाद से कहता, हसीन इब्न नमीर, ऐ सज्जाद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? कहा मैं जानता हूँ, तुम मेरे भैया अली अकबर का कातिल है। तूने मेरे अली अकबर के सीने में बर्छी उतार दी थी, तो कहा पानी क्यों पिलाया? इमाम सज्जाद ने कहा वो तेरा किरदार था, जब हम प्यासे थे तूने जुल्म किया। ये हमारा किरदार है कि जब हम देखते हैं मखलूक प्यासी है तो अपने कातिल को भी पानी पिलाते हैं। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमारे आशियों गुरु वाले जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इल्तिजा है कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा।
آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ نام 3 بار سورہ قل واللہ تلاوت فرما کر مرحوم سید محبوب علی ابن قمر علی، شاکرہ فاطمہ بنت قمر علی اور کل مرحومین